Hello everyone, in this video we will start a new chapter of class 12th chemistry, that is surface chemistry. So the question is, what is the meaning of surface chemistry, or what do we study in surface chemistry? Surface chemistry is the branch of chemistry which deals with the surface phenomenon, means everything that happens on the surface of a substance is to be studied in surface chemistry. So surface chemistry is the branch of chemistry which deals with the surface phenomenon. Now there are so many surface phenomenon, and we will study these phenomenon one by one. So the first phenomenon that we are going to study is adsorption. So what is the meaning of adsorption? So actually the adsorption is the accumulation of a substance or the particles on the surface of another substance. For example, this is a substance, and if the particles of any substance are accumulated, are deposited on the surface of this substance, this phenomenon will be called adsorption. This phenomenon will be called adsorption. Now in adsorption there are two type of substances. One is called adsorbent and other is called adsorbate. So for example, if this is a substance and some particles are deposited on the surface of this substance, now the substance on the surface of which any other substance is deposited, that substance is called adsorbent, and the substance which is deposited on the surface of adsorbent, that substance is called adsorbate. So you have to remember these two type of substances. One is adsorbent, the substance on the surface of which a substance is deposited, and the adsorbate are the substances, the particles of which are deposited on the surface of adsorbent. So hope the difference between adsorbent and adsorbate is clear to you. तो सरफेस केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद सरफेस फिनोमिनन, सरफेस पे जो भी फिनोमिनन, जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो हम पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री में. एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्प्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस किसी भी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे एक्यूमुलेट होता है, या फिर आप कह सकते हो डिपॉजिट होता है. तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन. और एड्सॉर्प्शन में आपको दो तरीके के सब्सटेंसेस का नाम ध्यान में रखना है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. एक होता है एड्सॉर्बेंट. एड्सॉर्बेंट वो सब्सटेंस है जिसके सरफेस पे, अगर इसके सरफेस पे कोई चीज़ डिपॉजिट हो रही है, मान लेते हैं इसके सरफेस पे कोई सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, कोई गैस डिपॉजिट हो रही है, कोई और सब्सटेंस के पार्टिकल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये सब्सटेंस जिसकी सरफेस पे डिपॉजिट हो रहा है ये क्या है? एड्सॉर्बेंट है. और जो इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो रहा है, अगर इसके सरफेस पे गैस डिपॉजिट हो रही है तो गैस क्या हो जाएगी? एड्सॉर्बेट हो जाएगी. अगर डस्ट पार्टिकल्स डिपॉजिट हो रहे हैं तो डस्ट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? एड्सॉर्बेट हो जाएंगे. तो होप कि आपको एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट में डिफरेंस समझ में आ गया. वन मोर फिनोमिनन इज देयर, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. सो यू हैव हर्ड ऑफ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन के बारे में आप बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हो. तो एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन ये दोनों दो अलग अलग फिनोमिनन हैं. तो adsorption is a surface phenomenon, the accumulation of the particles on the surface of a substance, that is called adsorption. But when the accumulation takes place in the bulk of the substance, it is known as absorption. तो अगर बल्क का मतलब होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस है उसके सरफेस पे ही नहीं, उसके बॉडी के अंदर भी कोई पार्टिकल्स डिपॉजिट होते हैं या वो एक्यूमुलेट करता है इनसाइड द बॉडी, अगर वो सरफेस को पेनिट्रेट करके और सब्सटेंस के अंदर एंटर करते हैं, तो तब उस फिनोमिनन को कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन. तो आपको बहुत क्लियर डिफरेंस समझना है. एड्सॉर्प्शन केवल सरफेस फिनोमिनन है, तो अगर इसके सरफेस पे कोई पार्टिकल्स डिपॉजिट हो रहे हैं तो ये एड्सॉर्प्शन है. लेकिन वो पार्टिकल्स सरफेस को पेनिट्रेट करके इसके अंदर चले गए, बॉडी में एंटर कर गए, जिसको आप बल्क कहते हो, बल्क में एंटर कर गए, तो उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन. तो दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. तो ध्यान रखिए, एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन आर
two different phenomena. Now, what is the difference between adsorption and absorption? तो आपको adsorption और absorption के बीच का difference clearly समझना है. तो the first difference is that absorption is a bulk phenomena. Absorption is bulk phenomena, while adsorption it is a surface phenomenon. तो adsorption जो होता है वो surface पे होता है, जबकि absorption कहाँ होता है? वो बल्क में होता है, पूरी बॉडी के थ्रू आउट होता है. और भी छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, लाइक द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट या किसी भी सब्सटेंस का जो कंसंट्रेशन होता है ऑन द सरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम द बल्क. तो बल्क पे जो कंसंट्रेशन होगा किसी भी सरफेस का जिसको ये एक्यूमुलेट कर रहा है, तो बल्क में जो कंसंट्रेशन होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस. तो सरफेस पे अलग कंसंट्रेशन होगा और बल्क में अलग कंसंट्रेशन होगा. किसमें? एड्सॉर्प्शन में. while in case of absorption the concentration is almost uniform throughout. जो बल्क में कंसंट्रेशन होगा सरफेस पे भी ऑलमोस्ट वही कंसंट्रेशन होगा. तो क्योंकि जो एड्सॉर्प्शन होता है दैट इज अ सरफेस फिनोमेना एंड जो एब्जॉर्प्शन होता है एड्सॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना. तो एब्जॉर्प्शन में पूरे बल्क पूरी बॉडी के थ्रू आउट सेम एक्यूमुलेशन होता है, तो इसीलिए कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है पूरी बॉडी में, जबकि एड्सॉर्प्शन में सरफेस पे ही एक्यूमुलेशन होता है तो सरफेस पे अलग कंसंट्रेशन होगा, व्हाइल बल्क में अलग कंसंट्रेशन होगा. द थर्ड थिंग, तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन is initially very high and it keeps decreasing gradually. क्योंकि ये सरफेस फिनोमेना है तो सरफेस में एक्यूमुलेशन होता रहेगा पार्टिकल्स का, और उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि सरफेस पे एक्यूमुलेशन होते जा रहा है तो सरफेस पे पार्टिकल्स डिपॉजिट होते जाएंगे. तो धीरे धीरे जो डिपोजिशन होगा, क्योंकि सरफेस फिल होता रहेगा और धीरे धीरे डिपोजिशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. तो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन धीरे धीरे कम होते जाता है. जबकि इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बल्क फिनोमेना होता है, तो इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट. तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन. सो रिमेंबर अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज जॉर्प्शन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कोई भी बॉडी है उसमें दो फिनोमेनन हो सकते हैं, वन इज एड्सॉर्प्शन एंड absorption. So in general adsorption and absorption they take place simultaneously. So you can say that the phenomenon of adsorption and absorption are together called zorption. तो generally जब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो, सरफेस पे भी और बल्क में भी कोई फिनोमेनन हो, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जॉर्प्शन. तो जॉर्प्शन में क्या होता है, एड्सॉर्प्शन as well as absorption. तो hope you have understood the meaning of absorption. तो adsorption और absorption अगर दोनों हो रहे हो, it is absorption. The next topic is positive and negative adsorption. So what is positive adsorption? As you know, during adsorption as well as absorption both take place. तो जॉर्प्शन के टाइम पे एड्सॉर्प्शन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा. इसका मतलब जो एक्यूमुलेशन होगा पार्टिकल्स का दैट विल टेक प्लेस ऑन द सरफेस एज वेल एज इन द बल्क. तो बल्क में भी होगा और सरफेस में भी एक्यूमुलेशन होगा. तो पॉजिटिव और निगेटिव एड्सॉर्प्शन का जब हम डिस्कशन करते हैं तो वो कब होता है, जब जॉर्प्शन होता है, मीन्स एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेसेस होते हैं. तो आपको पता है क्योंकि एक्यूमुलेशन सरफेस पे भी होगा और बल्क में भी होगा. नाउ इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस एट सरफेस इज मोर कंसंट्रेशन इन द बल्क, तो अगर ये सब्सटेंस है इसके सरफेस पे कोई दूसरा सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है और क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी साइमल्टेनियसली होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, बल्क में भी वो सब्सटेंस आएगा. तो अगर सरफेस पे जो कंसंट्रेशन होगा किसका, जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हो रहा है, जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन अगर सरफेस पे ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इन द बल्क, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन. मतलब सरफेस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है और बल्क में कम है, तो उसको कहेंगे पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन. अगर
उल्टा होता है, मीन्स सरफेस पे जो कंसंट्रेशन है दैट इज लेस देन द कंसंट्रेशन इन द बल्क। तो ऐसे केस में इसको हम कहेंगे निगेटिव एड्जॉर्प्शन। तो बस अगर सरफेस पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पॉजिटिव, और अगर सरफेस पे कंसंट्रेशन कम है किससे, बल्क के कंसंट्रेशन से, तो वो हो गया नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। सो दिस इज वेरी इजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज डिसॉर्प्शन। So the name suggests desorption. So the process of desorption is opposite to that of adsorption. Means adsorption is the accumulation of the particles of a substance on the surface of other substance, while desorption is the removal of the particles of a substance from the सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस। तो डिसॉर्प्शन क्या हो गया, एड्सॉर्प्शन का अपोजिट हो गया। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि ये कोई बॉडी है, इसके सरफेस पे कोई सब्सटेंस के पार्टिकल्स अगर डिपॉजिट हो रहे हैं तो उसको हम एड्सॉर्प्शन कहेंगे, लेकिन अगर उन्हीं पार्टिकल्स को आप रिमूव कर रहे हो उसको सरफेस से तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे डिसॉर्प्शन। सो डिसॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन बोथ आर अपोजिट फिनोमेनन। The next topic that we will discuss is adsorption of gases on the surface of solids. तो जनरली हमने बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस देखे हैं जहाँ पे सॉलिड्स के सरफेस पे गैसेस एड्सॉर्ब होती हैं। नाउ अगर सॉलिड के सरफेस पे गैसेस एड्सॉर्ब होती हैं तो कितनी गैस एड्सॉर्ब होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स। तो डिस्कस करते हैं कि कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे एड्सॉर्प्शन जो होता है गैसेस का ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है, द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे डिपॉजिट होगा और कौन सा सब्सटेंस नहीं होगा, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे। तो मान लीजिए कोई एड्सॉर्बेंट है तो ये एक सब्सटेंस को तो एक्यूमुलेट कर लेता है अपनी सरफेस पे, लेकिन दूसरे सब्सटेंस को नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ऐसा है। तो द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन द सेकेंड इज नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, सेम थिंग। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पे भी डिपेंड करता है, वो किसी के सरफेस पे डिपॉजिट होता है या किसी के सरफेस पे डिपॉजिट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पे। तो एक एड्सॉर्बेट जो एक एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है वो दूसरे एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे नहीं होता है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये सबसे पहली चीज़ तो इन दोनों के नेचर पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज surface area of adsorbent. So that is quite obvious, surface area of adsorbent, because the adsorption is surface phenomenon. surface phenomenon का मतलब क्या हुआ कि ये surface पे ही होगा। तो surface area किसी भी adsorbent का जितना ज़्यादा होगा कोई भी गैस उसके surface पे उतनी ही ज़्यादा एक्यूमुलेट होगी। तो इसीलिए ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा सरफेस मिलेगा एक्यूमुलेशन के लिए, ज़्यादा सरफेस मिलेगा तो ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई, बहुत इजी है इसको समझना। नाउ द नेक्स्ट इज प्रेशर। सो इन केस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस प्रेशर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इन जनरल द accumulation, or you can say the adsorption of gas on the surface of a solid increases with increase in the pressure. तो इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे प्रेशर के कॉन्सेप्ट को। एंड द लास्ट थिंग इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। जनरली हमको फिलहाल इतना समझना है बिकॉज देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। तो अगर इस एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे आपने कोई सब्सटेंस डिपॉजिट किया हुआ है तो देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो गई, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है इन जनरल। बिकॉज ऑफ दैट द एड्सॉर्प्शन में डिक्रीज। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उससे एड्सॉर्प्शन कम या ज़्यादा हो सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन. So as you know, there is
a force of attraction between the molecules of adsorbate and adsorbent on the surface. तो इसी वजह से क्या होगा कि जो एड्जॉर्बेट के पार्टिकल्स होंगे वो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एक्यूमुलेट होंगे. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो एक्यूमुलेशन पॉसिबल नहीं होगा. तो हमेशा देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का होता है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ adsorbate and adsorbent? On the basis of that we have divided the adsorption in two categories. One is physical adsorption, or it is also called physisorption, and other is chemical adsorption or chemisorption. तो दो तरीके का adsorption होता है, पहला physical adsorption या फिर chemical adsorption. तो नाम क्लियर है. physical adsorption में क्या होता है? physical adsorption में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके, एड्जॉर्बेट के, वो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे डिपॉजिट होते हैं. एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आपको पता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो वो बाय वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपॉजिट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट. तो आपको ये ध्यान में रखना है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज weak van der Waals force of attraction. Now in case of chemical adsorption or chemisorption, the molecules of adsorbate are attached to the surface of adsorbent by chemical bond. तो वहाँ पे क्या होगा, कोई chemical bond होंगे between the adsorbate and adsorbent. तो chemical adsorption में chemical bonds होंगे, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होगा, ओनली वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी देयर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन. तो ये मेन डिफरेंस हो गया कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन किस बेसिस पे हमने कैटेगराइज किए, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट. तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको सारे डिफरेंसेस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे, द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन. सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन. सो लेट्स सी वन बाय वन. द फर्स्ट इज नॉन स्पेसिफिक नेचर एंड इट इज स्पेसिफिक इन नेचर. तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन का जो नेचर होता है इट इज नॉन स्पेसिफिक. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन स्पेसिफिक? मीन्स फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज नॉट स्पेसिफिक फॉर एनी सब्सटेंस. मान लीजिए ये एड्जॉर्बेंट है तो ये किसी भी सब्सटेंस के, बहुत सारे सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है. तो कोई स्पेसिफिक केस नहीं होगा कि इसी एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्ब करेगा या दूसरे एड्जॉर्बेट को नहीं करेगा. वो जनरली बहुत सारे एड्जॉर्बेट्स को एड्जॉर्ब कर सकता है अपने सरफेस पे. तो दैट्स वाई इट इज नॉन स्पेसिफिक. वाइल केमिकल एड्जॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर. मतलब अगर ये सब्सटेंस है, इसको अपने सरफेस पे किसी सब्सटेंस को एक्यूमुलेट करना है तो ये हर किसी को एक्यूमुलेट नहीं करेगा, ये केवल कुछ को ही एक्यूमुलेट करेगा. सेलेक्टिव होगा तो स्पेसिफिक होगा, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होगा. कौन? केमिकल एड्जॉर्प्शन. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई. तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो अगेन हमको वापस जाना पड़ेगा इनकी डेफिनेशन पे. फिजिकल एड्जॉर्प्शन में रीजन क्या होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन का? वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड यू नो दैट वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर यूनिवर्सल. हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यूनिवर्सल होते हैं, और अगर यूनिवर्सल हैं तो एक सब्सटेंस हर सब्सटेंस को अपने सरफेस पे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेगा, किसी को भी एक्यूमुलेट कर लेगा तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है ज़्यादा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो क्या है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर एक सब्सटेंस का पार्टिकल हर दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स के साथ एक्सपीरियंस करता है. तो इसीलिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होगा? फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा नॉन स्पेसिफिक. मतलब कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस किसी स्पेसिफिक एड्जॉर्बेंट पे एड्जॉर्ब नहीं होगा, कोई भी किसी पे जनरली हो जाता है. बट केमिकल एड्जॉर्प्शन में रीजन क्या है? केमिकल एड्जॉर्प्शन होता क्यों है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट. एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में यहाँ पे एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है. अब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस चाहिए. मीन्स ऐसा नहीं होगा कि आपने एक सब्सटेंस लिया और दूसरा सब्सटेंस लिया
और दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया, उसके लिए कंडीशंस चाहिए। हर सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब इन केस ऑफ केमिजॉर्प्शन द ओनली सब्सटेंस विच कैन फॉर्म द केमिकल बॉन्ड कैन बी एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो ये तो स्पेसिफिक ऑटोमेटिकली हो गया कि जिसके साथ वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है उसको एड्जॉर्ब करेगा अपने सरफेस पे, और जिसके साथ वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है इट कैन नॉट एड्जॉर्ब दैट सब्सटेंस ऑन द सरफेस। और अगर एड्जॉर्ब भी करता है तो वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा, फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। सो आई थिंक it is clear to you why it is non-specific and it is specific in nature. So let's move to the next topic, that is nature, reversible and irreversible. तो physical adsorption is reversible in nature while chemical adsorption is irreversible in nature. Now what is the meaning of reversible and irreversible? मतलब कि अगर physical adsorption के केस में कोई substance किसी भी एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गया तो आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हो, देन वो इजीली अगेन फिर से एक्यूमुलेट हो सकता है उसके सरफेस पे। तो ये क्या है? रिवर्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे केवल वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक। तो अगर बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे आप उनको इजीली रिमूव कर सकते हो। थोड़ा सा आपने हीट कर दिया, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीक होने लगेंगे, जो मॉलिक्यूल्स की अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होने लगेगी, तो जो एड्जॉर्बेट है वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। फिर अगेन क्योंकि वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फिर अगर आप एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्बेंट के पास लेके आ गए तो फिर से वो प्रोसेस हो जाएगा, दैट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन। बट इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्या है? क्योंकि एक बार केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया तो केमिकल बॉन्ड को तो ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपके लिए जो डिसॉर्प्शन है, मीन्स जो एक्यूमुलेटेड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए ये क्या है? इरिवर्सिबल है, जबकि ये क्या है? रिवर्सिबल है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द फिजिकल एड्जॉर्प्शन हैज़ लो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है दैट इज वेरी लो, दैट इज अबाउट 20 to 40 किलो जूल पर मोल। तो एड्जॉर्प्शन में जो एंथैल्पी होती है वो बहुत लो होती है, किसकी? फिजिकल एड्जॉर्प्शन की, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल प्रोसेस होता नहीं है। तो चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगी वो बहुत ही कम होगी। रीज़न क्लियर है, क्योंकि वहाँ पे कोई केमिकल प्रोसेस हो नहीं रहा है, तो चेंज इन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होने नहीं वाला है। बट इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, सो चेंज इन एनर्जी विल बी हाई एज कंपेयर टू फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो इसीलिए जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन विल बी वेरी हाई एज कंपेयर टू फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो इसका जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होगा दैट इज ग्रेटर देन 80 किलो जूल पर मोल। नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस, इट इज मल्टी लेयर्ड। द फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज मल्टी लेयर्ड while chemical adsorption is monolayered. Monolayered, multi-layered, what does it mean? Means if I have a substance on the surface of which another substance is accumulated, तो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे एड्जॉर्बेट एक्यूमुलेट होता है। तो अगर एक लेयर बना दी किसी भी एड्जॉर्बेट ने किसी भी एड्जॉर्बेंट के ऊपर, तो इट इज़ नॉट अ सिंगल लेयर्ड और मोनोलेयर्ड, इट इज़ मल्टी लेयर्ड। मीन्स अगर एक एड्जॉर्बेट की लेयर बन गई, दूसरी भी बनेगी, तीसरी भी बन सकती है, चौथी भी बन सकती है, तो मल्टीपल लेयर्स बन सकती हैं एड्जॉर्बेट की ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इन केस ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन नॉन स्पेसिफिक होता है, और यहाँ पे जो रीज़न होता है एड्जॉर्प्शन का वो क्या है? वो है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगता रहेगा, तो इसीलिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता रहेगा। तो एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, दे विल कीप फॉर्मिंग। बट इन केस ऑफ chemical adsorption it is monolayered. Monolayered why? Because अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा है किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे तो वो होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो अगर एक बार केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर दिया, तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर दिया किसी भी एड्जॉर्बेट ने एड्जॉर्बेंट के साथ, तो सरफेस तो ऑक्यूपाई हो जाएगा। उसके बाद और सरफेस होगा नहीं जहाँ पे एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट के साथ रिएक्ट करके उसके साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर पाए। तो इसका मतलब अगर एक लेयर फॉर्म हो गई तो दूसरी लेयर फॉर्म होने का कोई चांस ही नहीं है इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन। सो दैट्स व्हाई इट इज मोनोलेयर्ड।
नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इजी है इसको समझना, बस आपको फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस ध्यान में रखना है कि केमिकल एड्जॉर्प्शन क्यों होता है और फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्यों होता है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज ड्यू टू द वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमेशा आपको याद रखना है। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? तो आपको पता है इफ़ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो इट विल ओवरकम द वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसकी वजह से जो एड्जॉर्बेट के पार्टिकल्स होंगे वो सरफेस छोड़ के भागने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगेगी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। तो इसकी वजह से जो एड्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। कब? अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। तो इफ़ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर द फिजिकल एड्जॉर्प्शन विल डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होने लगेगा। बट इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर द एड्जॉर्प्शन विल इंक्रीज, केमिकल एड्जॉर्प्शन विल इंक्रीज। अब फिनोमिनन क्या है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। अब आपको पता है केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? टेम्परेचर इंक्रीज करके। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हीट की फॉर्म में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स को वो एनर्जी मिल जाएगी, और अगर वो एनर्जी मिल जाएगी तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो इसका मतलब क्या होता है? एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एड्जॉर्प्शन क्या होने लगेगा? इंक्रीज होने लगेगा। बट इफ़ यू विल फर्दर इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को और भी ज़्यादा इंक्रीज करते हो तो पहले तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो एड्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑन फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर द केमिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज करते हो तो ड्यू टू दिस द बॉन्ड्स में ब्रेक, और अगर बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो बॉन्ड्स के ब्रेक होने से जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे होते हैं किसी भी एड्जॉर्बेंट के वो सरफेस से सेपरेट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से केमिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, बट टेम्परेचर इंक्रीज करने पे केमिकल एड्जॉर्प्शन पहले इंक्रीज होता है और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये भी डिक्रीज होता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जनरली इफेक्ट जो होता है on physical absorption and chemical absorption, effect of increase in pressure is almost same, because on increasing the pressure the physical absorption increases as well as the chemical absorption increases. Now what is the reason behind this? तो increase होने का reason क्या है कि जो प्रेशर इंक्रीज आप करोगे तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होंगे एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, और अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज आएंगे तो एक्यूमुलेशन ज़्यादा इजीली हो जाएगा, चाहे वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन का केस हो या फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन का केस हो। तो यहाँ पे दोनों पे प्रेशर का जो इफेक्ट है सेम है। नाउ द लास्ट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, एक्टिवेशन एनर्जी मीन्स फिजिकल एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसके होने के लिए जितनी एनर्जी होगी वो क्या होगी? कम होगी, जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम होगी या तो ऑलमोस्ट ना के बराबर होगी। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है वो होता है किसकी वजह से? ड्यू टू वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो यूनिवर्सल है, तो इसको होने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी या कोई भी एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी नहीं। बट यहाँ पे एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस प्रोसेस के होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जबकि इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। द नेक्स्ट टॉपिक इज adsorption isotherms. As you can see that isotherm, iso stands for same and therm temperature. तो अगर आप बात करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एड्जॉर्प्शन मीन्स किसी भी एड्जॉर्बेंट का कोई गिवन अमाउंट कितने एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्ब करता है विद
change in pressure. So the relationship, or you can say the mathematical expression which gives the relationship between the amount of adsorbate absorbed by a given amount of adsorbent and pressure or concentration is called adsorption isotherm. So adsorption isotherm बेसिकली क्या है? adsorption isotherm दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है कि कोई भी गिवन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट कितना एड्सॉर्बेट को एड्सॉर्ब करता है अगर आप प्रेशर को चेंज करते रहते हो। तो प्रेशर और एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस के बीच में जो रिलेशनशिप होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को या इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो हमारे पास जनरली दो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है जिसमें से हमको सिर्फ एक पढ़नी है। वन इज फ्रेंडलिक adsorption isotherm and other is Langmuir adsorption isotherm. So we will talk about Freundlich's adsorption isotherm. So what did Freundlich say? That if we establish a relationship between x by m and p. Now here x is mass of adsorbed, then m is mass of adsorbent and p is equilibrium pressure. So the relationship between the amount of adsorbate adsorbed by per unit of adsorbent and pressure is known as adsorption isotherm. So this is Freundlich's adsorption isotherm. तो यहाँ पे x by m क्या है? The mass of adsorbate adsorbed by per unit mass of adsorbent. So that is directly proportional to p raised power 1 by n. Now p raised power 1 by m है क्या? Now n is greater than 1. n की वैल्यू जो होगी that will be greater than 1. तो इनिशियली जो n की वैल्यू है आपको यहाँ पे दिख रहा है the relationship is almost linear. तो यहाँ पे आप देख सकते हो x by m और p के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। तो इन स्टार्टिंग आपको दिख रहा है कि लीनियर रिलेशनशिप है, ऑलमोस्ट लीनियर रिलेशनशिप है। तो n की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 बट इट इज ऑलमोस्ट 1 के बहुत क्लोज होगी, तो ऑलमोस्ट 1 के आसपास होगी। तो इसलिए x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p हो जाएगा वहाँ पे। तो आप कह सकते हो x बाई एम इज इक्वल टू k p रेस्ट पावर 1 बाई n. सो दिस इज द रिलेशनशिप। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन स्टार्टिंग x बाई एम को हमने किस एक्सिस पे लिया है? y एक्सिस पे, और x पे लिया हमने p को। तो जरा आप इसको कंपेयर कीजिए किस इक्वेशन से? y इक्वल टू एम एक्स प्लस c। तो यहाँ पे c तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। 1 बाई एन की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होगी इन बिगिनिंग में, तो इसीलिए शुरू में ये ऑलमोस्ट एक लाइन की तरह है। बट बाद में अगर हम बात करें तो बाद में ये लीनियर रिलेशनशिप नहीं रहेगी। तो बाद में आप इस इक्वेशन को, ये तो इक्वेशन होगी लाइन की, इस इक्वेशन को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बाद में क्या होता है? धीरे धीरे आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे x बाई एम की वैल्यू कांस्टेंट होती जाती है, तो n की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एट अ टाइम जब प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा 1 बाई एन की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। सो x बाई एम विल बी इक्वल टू k। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो x बाई एम की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू k इंटू पी रेस्ट पावर 1 बाई एन वेयर n इज ग्रेटर देन 1। तो इन द बिगिनिंग 1 by n is almost equal to 1. So therefore x by m and p has a linear relationship. But on increasing pressure, the value of n increases and it becomes almost 0 at a time. So x by m will become k, that is constant. Now the next thing is, if we will take log both sides. So on taking log both sides, so it will be log natural will be of x by m will be equal to ln k plus 1 by n ln p.
सो अगर आप लॉग नेचुरल को लॉग में कन्वर्ट करते हो, तो अगर आप लॉग नेचुरल को लॉग में कन्वर्ट करते हो तो सारे के सारे नंबर 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड 2.303 विल बी कैंसल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, दैट इज log x by m इज इक्वल टू log p 1 by n प्लस log k। नाउ अगेन इसको आपको कंपेयर करना है किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो y एक्सिस पे हमने किसको लिया है, log x बाई एम को। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। नाउ log p को हमने किस पे लिया है, x एक्सिस पे लिया है, तो इट विल बी द वैल्यू ऑफ x। और m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, तो ये लाइन की इक्वेशन बन रही है, तो m इज द स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू 1 बाय n। तो स्लोप जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय n। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज c, the constant term when x is 0, x means log p is 0, so when log p is 0 the value of y is, that is c, the constant term is log k। तो ये जो वैल्यू होगी that is equal to log k। तो ये constant term that is your y intercept, तो y intercept की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, log k। so this is the relationship between x by m and p, that is pressure। now in case of adsorption of solute from a solution, अगर किसी भी सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ से अगर सॉल्यूट एड्जॉर्ब होता है, तो ये तो गैसेस के लिए है। अगर हम लोग सॉल्यूशन से सॉल्यूट के एड्जॉर्ब होने की बात करते हैं तो वहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर की टर्म को कौन रिप्लेस कर देगा, कंसंट्रेशन। तो इन दैट केस देयर विल बी अ रिलेशनशिप बिटवीन x बाई एम एंड कंसंट्रेशन। तो आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हो कि अगर ऐसा होता है कि अगर हम सॉल्यूट के बारे में बात कर रहे हैं कि सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन से एड्जॉर्ब हो रहा है, तो वहाँ पे x बाई एम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c रेज्ड पावर 1 बाई n। सिर्फ आपने क्या करना है, किसको रिप्लेस करना है, प्रेशर को रिप्लेस करना है कंसंट्रेशन से। सो c विल बी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन and the relationship will be x by m equal to k c raised power 1 by n। so आप log ले सकते हो दोनों साइड में। so ln x by m will be equal to ln k plus 1 by n ln c, और you can say log x by m will be equal to 1 by n log c plus log k। अगर आपको किसी बुक में लॉग की जगह लॉग नेचुरल लिखा हुआ मिलेगा, अगर आपको यहाँ पे ln x बाय m मिलेगा, हो सकता है दिस इज ln k एंड दिस इज ln p। इस केस में तो ln c हो जाएगा। अगर प्रीवियस केस की बात कर रहे हम ln p की बात करेंगे तो वहाँ पे उसने ये वाली इक्वेशन ली होगी, दैट इज ln x बाय m इक्वल टू ln k प्लस 1 बाय n ln c। तो यहाँ पे लॉग नेचुरल के बीच में अगर आप ग्राफ बनाओगे तो भी सेम ग्राफ बनेगा, और अगर लॉग के बीच में, लॉग में बेस क्या होता है 10 होता है, तो अगर आप उसके बीच में ग्राफ बनाओगे तो भी सेम ग्राफ बनेगा। तो अगर आपको कहीं पे लॉग मिलता है तो वो भी सही है, और अगर आपको लॉग नेचुरल मिलता है तो वो भी सही है, ग्राफ दोनों के ऑलमोस्ट सेम होंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज adsorption isobars। so we have studied about adsorption isotherm that gives us the relationship between the amount of adsorbate adsorbed by a given amount of adsorbent and between concentration or pressure। in this case we are talking about adsorption isobars। so in this case pressure will be constant, bar आइसोबार मीन्स कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर की हम बात करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे द रिलेशनशिप बिटवीन x बाई एम मीन्स द मास ऑफ एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, और टेम्परेचर के बीच में हम रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे। वहाँ पे हमने किस चीज़ के बीच में रिलेशनशिप देखी थी, द रिलेशनशिप बिटवीन x बाई एम एंड p, और द रिलेशनशिप बिटवीन x बाई एम एंड c मीन्स कंसंट्रेशन, p स्टैंड्स फॉर प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट था। यहाँ पे किसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं, x बाई एम एंड t स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। सो द रिलेशनशिप बिटवीन x बाई एम एंड t। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो टेम्परेचर और
एड्जॉर्प्शन का जो रिलेशन है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंट होता है और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंट होता है। तो आपको पता है इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब्ड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो एड्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इट विल बिकम like this. So this is the graph for physical adsorption. Now the next is for chemical adsorption. So for chemical adsorption, the adsorption first increases and then decreases. So the value of x by m first increases with increase in T and then it will decrease. तो क्योंकि यहाँ पे पहले chemical adsorption increase होता है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, और टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज करते हो तो ये डिक्रीज होता है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, फर्स्ट it will increase and again then it will decrease. So this is the graph for chemical adsorption. So these are your adsorption isobars for physical and chemical adsorption. The next topic is application of adsorption. So there are various applications of adsorption. So we will discuss a few like removal of coloring matter. तो आपने देखा होगा कि जो कलरिंग मैटर होता है किसी भी सब्सटेंस में लाइक शुगर, ऑयल्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, तो उनमें कुछ कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं, तो वो इम्प्योरिटी होती हैं, उनको हमको रिमूव करना होता है। तो उसके लिए हम प्रोसेस यूज़ करते हैं एड्सॉर्प्शन। तो जैसे कि हम शुगर को वाइट करने के लिए, क्योंकि शुगर में कुछ कलर्ड सब्सटेंसेस होते हैं एज इम्प्योरिटी, तो उनको रिमूव करने के लिए वी यूज़ एनिमल चारकोल एज एन एड्सॉर्बेंट। तो एनिमल चारकोल के हेल्प से कलर्ड पिगमेंट रिमूव हो जाएगा और जो आपको शुगर है वो प्योर मिल जाएगी। द नेक्स्ट इज डाइंग। तो डाइंग में क्या होता है कि जो डाई होती है, डाई इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द क्लॉथ। अगर आप क्लॉथ पे डाई करते हो तो जो डाई होगी उस क्लॉथ के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगी। द नेक्स्ट इज सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। तो सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में एक मेथड होता है विच इज कॉल्ड रेजिन एक्सचेंज मेथड। तो रेजिन एक्सचेंज मेथड में हम जनरली जियोलाइट्स यूज़ करते हैं जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेते हैं। तो दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। यहाँ पे भी एड्सॉर्प्शन का यूज़ करके हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में आपको पता है क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस होता है दो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। तो अलग डिग्री पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी एड्सॉर्बेंट में कोई सब्सटेंस ज़्यादा एड्सॉर्ब होता है, कोई कम होता है। तो उनकी एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी पे जो ज़्यादा एड्सॉर्ब होगा वो इजीली एड्सॉर्ब हो जाएगा, जो कम एड्सॉर्ब होगा वो इजीली एड्सॉर्ब नहीं होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से हम दो अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज इन गैस मास्क। तो गैस मास्क जो हमको पॉइजनस गैसेस से प्रोटेक्ट करते हैं। सो इन गैस मास्क वी यूज़ suitable adsorbent which have the capacity to absorb the poisonous gases and protect us from the poisonous gases. So जो गैस मास्क होते हैं उसमें हम कुछ सुटेबल एड्सॉर्बेंट्स यूज़ करते हैं जो कि पॉइजनस गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेते हैं और हमको पॉइजनस गैसेस से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन एंड प्रिजर्विंग हाई वैक्यूम। तो वैक्यूम के बारे में आपको पता है, हाई वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो जैसे कि आपको पता है कि वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हम किसी भी स्पेस से गैसेस को रिमूव करते हैं, बट इट इज़ नॉट वेरी इजी। गैसेस को रिमूव करना, जब गैसेस की क्वांटिटी बहुत कम होती है किसी भी स्पेस में, तो उससे गैसेस रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होते जाता है। सो वी यूज़ सम एड्सॉर्बेंट। वो क्या करते हैं, वो उस गैस को एड्सॉर्ब कर लेंगी, तो इसकी वजह से जो वैक्यूम होगा वो बहुत हाई वैक्यूम आपको मिल जाएगा। द नेक्स्ट इज़ कैटालिसिस। तो कैटालिसिस का एक कंप्लीट प्रोसेस है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। जैसे हमने आज एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ा, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी कैटालिसिस। तो कैटालिसिस के बारे में हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो कैटालिसिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो ये एड्सॉर्प्शन का ही एक एप्लीकेशन होता है कैटालिसिस। द नेक्स्ट इज इन कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। तो आपने सिलिका जेल का नाम सुना होगा और देखा भी होगा। सिलिका जेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। सिलिका जेल क्या करता है, वो मॉइस्चर एड्सॉर्ब करता है अपनी सरफेस पे। तो मॉइस्चर को एड्सॉर्ब करने की वजह से जो ह्यूमिडिटी होती है, जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसके एनवायरनमेंट पे, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
तो ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के भी काम आता है। एंड द नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस। तो बेसिकली जो नोबल गैसेस होते हैं, डिफरेंट नोबल गैसेस विल हैव डिफरेंट टेंडेंसी टू गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एनी एड्जॉर्बेंट। तो मान लेते हैं हीलियम है और नियॉन है, तो हीलियम और नियॉन अगर आपको दोनों को सेपरेट करना है, या नियॉन और आर्गन को, या आर्गन और हीलियम को, या फिर क्रिप्टन और नियॉन को, तो आपको अगर दो नोबल गैसेस को सेपरेट करना है तो दो नोबल गैसेस को सेपरेट करने के लिए हम एड्जॉर्प्शन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों नोबल गैसेस की जो टेंडेंसी होगी किसी भी एड्जॉर्बेंट्स में एड्जॉर्ब होने की, वो अलग अलग होगी। तो मान लेते हैं अगर एक गैस ज़्यादा एड्जॉर्ब होती है, दूसरी गैस कम एड्जॉर्ब होगी, तो एक गैस तो एड्जॉर्बेंट के साथ एड्जॉर्ब हो जाएगी, वाइल जो दूसरी गैस होगी वो वहीं रह जाएगी। तो दोनों गैसेस इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल इन एड्जॉर्प्शन। अगर आपको एड्जॉर्प्शन के किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।